Good morning, everyone. Just check I'm audible now. Please confirm. Yeah. We have to start with the lecture, right? And we have to start with the new chapter for revision. Okay. The name of the chapter is Not for Profit. Not for profit organizations' financial statements, right? So, try to understand. We prepare, right? For not for profit organizations, we prepare income and expenditure account. We prepare income and expenditure account. So, financial statements of NPO includes financial statement of NPO includes one, the receipt and payment account, which is given in the question. Receipt and payment account, it is a cash account. It is a cash account. I mean, they give you opening cash, they give you various transactions during the year, receipt transactions and the payment wallet transactions. This is opening cash and bank balance. Then all the receipts and all the payments. And then you get closing balance. Try to understand what I want to tell you. This is receipt and payment account. Opening cash, all the receipts, the amount received by the NPO, less all the payments for various purposes, then you get closing cash. I mean, this opening cash, this is an asset, this is asset, this is opening asset. Try to understand, this is opening asset. The closing cash balance is always asset, is closing asset. Therefore, this is closing asset. ओपनिंग बैलेंसेस ओपनिंग बैलेंस शीट में आएंगे, क्लोजिंग बैलेंसेस क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएंगे, ध्यान देना. रिसीट्स generally of two nature. Some receipts are increase in income. Some receipts are increase in income. Subscription received, rent received, dividend received, interest received. You can say tuition fees received in case of school, exam fees received in case of school, right? Annual membership fees received. So some receipts, NPO receives money, it can be their source of income. वो क्या होगी? आपकी income होगी. So receipts, some of the receipts will be added in income. Some receipts are because, right, you have borrowed the money or it is liability, increase in liability. Which are those receipts which increases liabilities? Like capital receipt, ये revenue receipts होते हैं. Income means revenue receipt. Income means revenue receipts. And liabilities means capital receipts. Like, right? Example, legacies received, specific donation received, donation for building, grant for building,
समझ में आ रहा है? डोनेशन फॉर लाइब्रेरी, सो स्पेसिफिक डोनेशन रिसीव्ड, legacies received, entrance fees which to be capitalized. So there are some receipts which are added in liability, and at the same time there are some receipts they may be decreased in fixed assets or investments. Like your sold machinery, your sold fixed asset, you receive the money, so that is capital receipt. Capital receipts, capital receipt matlab balance sheet item, it will change the balance sheet item. Capital receipts will either increase liability or either decrease the fixed assets. They are non recurring in the nature. मतलब जो receipt side है, जो receipt side है, opening balance जो रहेगा वो opening balance sheet में रहेगा. Some receipts will be added in income, some receipts will added in liability, and some receipts will be deducted from fixed assets if it is because of sale of the fixed asset. So आपको ये समझना इंपॉर्टेंट है कि रिसीट साइड जाएगी कहाँ पे. They have given you receipt payment account which is tallied, and as everybody knows the tallied information has one unique effect. जो भी हमें tallied information दी जाती है वो हमारे आंसर में एक इफेक्ट होता है. मतलब रिसीट साइड पे जो भी आइटम्स होंगे उनमें से ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, सम ऑफ द रिसीट्स इनकम में ऐड होंगे, सम ऑफ द रिसीट्स लायबिलिटी में ऐड होंगे, and some of the receipts will be deducted from fixed assets. Payments. Some payments can be revenue in the nature. Some payments are capital in the nature. Some payments revenue in the nature, that is expenditure, they increases expenses. Rent paid, salary paid, printing and stationery के लिए payment. Try to understand, right? Maintenance का payment, repairs का payment, those payments are recurring in the nature, they increases expenses. हम उसको expenses में add करेंगे. Some payments, right? Some payments may increase your fixed assets or investments. You may purchase land, you may purchase equipment, you may purchase any fixed asset, or you will invest into investments. So payment side, some payments will be added in expenses, some payments will be added in the fixed assets or investments, and the closing balance closing asset में जाएगा. इतना समझना बहुत important है. So can I show, try to understand, हम recent payment account की बात कर रहे हैं, हम अब भी recent payment account की बात कर रहे हैं, और ये समझना बहुत ही important है. So ध्यान देना, this is your recent payment account. ये पूरे साल का होता है, अप्रैल से मार्च एंड का होता है. ये कौन से ईयर का होता है? अप्रैल से मार्च एंड. ठीक है. देयर इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक. Opening balance of cash and bank. There are receipts, various receipts that increases your money. ये डेबिट है, ये कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट का डेबिट है. रिसेंट पेमेंट इज अ कैश एंड बैंक अकाउंट, इट इज कैश बुक. Some receipts are because they increases the income. इसको इनकम साइड पे डालेंगे, क्रेडिट साइड पे डालेंगे इनकम एक्सपेंडिचर के. Some receipts increases liability. इसको हम लाइबिलिटी में ऐड करेंगे, मतलब क्रेडिट कर रहे हैं. And some receipts
as decrease in fixed assets because you have sold fixed assets, because you have sold. This is investing activity, this is financing activity, this is operating activity. If you remember cash flow, if you remember cash flow, तीन activities: operating activity, income is operating activity, profit and loss, loan taken is a financing activity, and sale of fixed asset is investing activity. Then this is your total amount received. ये पूरा पैसा इनफ्लो था, दिस इज इनफ्लो. देन बाय you make various payments during the year. You make various payments during the year. Some payments increases expenditure. Those will be transferred to expenses. यहाँ पे क्रेडिट है, इनकम एक्सपेंडिचर को डेबिट होगा बिकॉज वो एक्सपेंस है. Some payments decreases liabilities. हो सकता है like you repaid the loan. You repaid the loan हो सकता है, ऐसे आपने इसमें ट्रांजैक्शन नहीं है, बट ऐसे भी हो सकता है आपने ओवरड्राफ्ट रिपे किया है, ओपनिंग लाइबिलिटी में ओडी है, ओपनिंग लाइबिलिटी में ओडी है, एंड पेमेंट साइड पे दिखता है बाय ओडी रिपेड, मतलब वो ओवरड्राफ्ट आपने रिपे किया है, जो लाइबिलिटी वो आपने रिपे की है, लोन रिपेड, ओवरड्राफ्ट रिपेड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एंड परचेस ऑफ फिक्स्ड असेट्स. This is operating activity, outflow from operating activity. This is outflow from financing activity, repayment. This is outflow from investing activity, right? Fixed assets and investments क्या होते हैं? Investing activity. If you remember, cash flow. So these are your payments. ये payment करने के बाद you are left with by closing balance. Try to understand. Every item of receipt and payment account will be transferred to one place. या तो इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा या वो बैलेंस शीट में जाएगा, या तो इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा या बैलेंस शीट में जाएगा, एक जगह पे जाएगा. दिस इज राइट योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. देन another way of looking at income and expenditure is this. Another way of looking at receipt and payment is this. Sorry, income expenditure बोला मैंने, receipt and payment is this. ध्यान देना. What is that? To opening balance. Cash and bank. To receipts. You receive the money. You receive the money for previous year, for current year, for next year. You may receive the money in this year, for previous year, for this year, or for next year. Then you make the payment by payments. You make the payments for previous year, for current year, for next year.
and this is your recent payment. Try to understand anything of the previous year. रिसेंट पेमेंट का आइटम एक जगह पे जाता है, राइट? रिसेंट पेमेंट का आइटम एक जगह पे जाता है. एनीथिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर, ओपनिंग बैलेंस शीट. अब नाउ वी आर रिसीव्ड मनी फॉर द प्रीवियस ईयर. हमें लास्ट ईयर के लिए पैसे मिले, मतलब लास्ट ईयर में आउटस्टैंडिंग था, तो ओपनिंग बैलेंस शीट असेट में रहेगा. वो उल्टा देखो, अगर रिसेंट पेमेंट के डेबिट साइड पे तो लायबिलिटी के उस अपोजिट साइड पे लिख दो. अगर आपको नहीं समझ में आता है तो वो याद रखने के लिए ठीक है, बट कंसेप्ट क्या है? वी इन दिस ईयर आई हैव रिसीव्ड मनी फॉर द प्रीवियस ईयर. तो प्रीवियस ईयर में रिसीवेबल था, असेट था. ये करंट ईयर का है, सो दिस विल बी ट्रांसफर टू इनकम. एंड यू आर रिसीव्ड मनी फॉर द नेक्स्ट ईयर. ये प्री रिसीव्ड है, ये प्री रिसीव्ड है. नेक्स्ट ईयर मतलब क्लोजिंग, प्रीवियस ईयर मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट, नेक्स्ट ईयर मतलब क्लोजिंग बैलेंस शीट. एंड दिस इज लायबिलिटी रिसीव्ड इन एडवांस. सो इफ यू आर रिसीव्ड मनी इन दिस ईयर, आपको इस साल में कौन सा पैसा मिल सकता है? पहले का आउटस्टैंडिंग, इस ईयर का और नेक्स्ट ईयर का एडवांस वाला. पहले का जो रिसीवेबल था वो मिल सकता है इस ईयर का, प्लस नेक्स्ट ईयर का पहले ही मिल सकता है. सो पहले का आउटस्टैंडिंग इस साल में मिला है, मतलब जो रिसीवेबल था वो मिला है, वो ओपनिंग एसेट में दिखेगा आपको. उतना मिनिमम ओपनिंग एसेट में होना चाहिए. मतलब अगर आई हैव रिसीव्ड 10,000 फॉर द प्रीवियस ईयर, इफ आई हैव रिसीव्ड 10,000 फॉर द प्रीवियस ईयर इन दिस ईयर, सो मिनिमम मेरे एसेट में मिनिमम 10,000 होने चाहिए. 10 से ज्यादा पॉसिबल है, बट 10 से कम नहीं होगा. मतलब 15,000 रिसीवेबल थे, 10,000 आ गए, चलेगा. 12,000 रिसीवेबल थे, 10,000 आया, चलेगा. 10,000 रिसीवेबल थे, 10,000 आया, चलेगा. बट उल्टा नहीं हो सकता कि 8,000 रिसीवेबल थे और 10,000 आ गया. ये कभी पॉसिबल नहीं है. समझ में आ रहा है? इफ यू मेड पेमेंट फॉर द प्रीवियस ईयर, आपने इस साल में क्यों पेमेंट किया है? इस साल में क्यों पेमेंट किया प्रीवियस ईयर का? बिकॉज प्रीवियस ईयर में आपने पेड नहीं किया था, मतलब प्रीवियस ईयर में वो पेएबल था, वो लास्ट ईयर में पेएबल था, इस साल में हमने पेमेंट किया है, मतलब वो प्रीवियस ईयर मतलब ओपनिंग, ओपनिंग में मतलब लास्ट ईयर में वो लायबिलिटी थी. यू विल फाइंड दिस आइटम इन द ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, अपोजिट साइड पे देखोगे ओपनिंग बैलेंस शीट. करंट ईयर के लिए जो पेमेंट है दे टू बी ट्रांसफर टू एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस. एंड अगर आपने करंट ईयर में नेक्स्ट ईयर का पेमेंट किया, अगर आपने इस ईयर में नेक्स्ट ईयर का पेमेंट किया, ध्यान देना क्या बोल रहा हूं, ठीक है? अगर इस ईयर में हमें नेक्स्ट ईयर का पेमेंट किया, तो हमने प्रीपेड किया है, पेड इन एडवांस है, दिस इज नेक्स्ट ईयर मतलब क्लोजिंग बैलेंस शीट, दिस इज असेट. ये प्रीवियस ईयर का ओपनिंग मतलब ये प्रीवियस ईयर का होता है, राइट? ये ओपनिंग बैलेंस शीट असेट में रहेगा. एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट मतलब क्लोजिंग वाला है ना, ये रहेगा क्लोजिंग बैलेंस शीट असेट. लिख लेना, ये मेक इट फास्ट, जल्दी करो.
लिखो, जल्दी करो। लिखो जल्दी। सो हमें ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें रिसेंट पेमेंट दिया होगा, और उस रिसेंट पेमेंट को अगर आप बराबर जगह पे डाल देते हो ना, तो आपका आंसर ऑब्वियसली होगा। एवरी आइटम ऑफ रिसेंट पेमेंट अकाउंट विल हैव वन यूनिक इफेक्ट। एवरी आइटम ऑफ रिसेंट पेमेंट अकाउंट का कोई भी टैलेंट इंफॉर्मेशन हो, उसको एक ही इफेक्ट रहता है आपका आंसर। जल्दी करो। अगर आपको प्रीवियस ईयर दिखता है तो ओपनिंग में ढूंढो उसकी जगह, ओपनिंग बैलेंस शीट में। नेक्स्ट ईयर दिखता है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में उसकी जगह ढूंढो। समझ में आ रहा है? आगे। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, therefore this is your opening balance sheet. This is your opening balance sheet, ध्यान देना। This is your recent payment. This is your recent payment. This is your income and expenditure, and this is closing balance sheet. लिंकिंग समझने का ट्राई करो। ओपनिंग बैलेंस शीट, रिसीट पेमेंट अकाउंट, this is your income and expenditure account, which is similar to P&L account, and this is your closing balance sheet. यहां पे रहता है टू ओपनिंग बैलेंस, टू इनकम्स, टू इनकम्स रिसीव्ड, टू या टू रेवेन्यू रिसीट्स, टू कैपिटल रिसीट्स। ध्यान देना। अच्छा, रेवेन्यू रिसीट्स फॉर करंट ईयर, रिसीव्ड फॉर करंट, रिसीव्ड फॉर प्रीवियस ईयर, रिसीव्ड फॉर करंट ईयर, रिसीव्ड फॉर नेक्स्ट ईयर। ठीक है। कैपिटल रिसीट्स, इंक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन फिक्स्ड असेट्स, सेल ऑफ फिक्स्ड असेट। पेमेंट्स, बाय पेमेंट्स, रेवेन्यू पेमेंट्स, revenue expenses for previous year, for current year, for next year.
by capital payments or capital expenditure. Two types of capital expenditure. Increase in fixed asset. You purchase the fixed assets or investment. And you repay the loans, etc. Or overdraft repaid example. Then you get by closing balance. So try to understand कौन सा आइटम कहाँ पे जाएगा. Opening balance will be transferred to opening balance sheet. Closing balance will be transferred to closing asset. Opening balance in receipt payment is transferred to opening balance sheet asset. Closing balance in receipt payment account to be transferred to closing balance sheet. ध्यान देना. Capital receipts, legacies received, specific donation received is transferred to closing liability. Is transferred to closing liability. ठीक है. Decrease in fixed assets are deducted from fixed assets. फिक्स असेट से माइनस होंगे. ध्यान देना. कैपिटल एक्सपेंडिचर, purchase of fixed assets are added in the fixed assets. Decrease in liabilities are subtracted from the closing liabilities. ठीक है यहां तक. Now दूसरी बात, if you received anything for the previous year, वो ओपनिंग असेट में रिसीवेबल होगा. मिनिमम उतना होगा, उससे ज्यादा चलेगा बट कम नहीं. इफ यू रिसीव्ड समथिंग फॉर द करंट ईयर, अगर आपको कुछ करंट ईयर के लिए मिला है, you have to add it in income. If you received something for the next year, वो क्लोजिंग लायबिलिटी में जाएगा. देखो रिसीट साइड कहां पे गई. ओपनिंग बैलेंस ओपनिंग असेट में गया. इफ यू रिसीव्ड समथिंग फॉर द प्रीवियस ईयर, अगर आपको प्रीवियस ईयर के लिए कुछ मिला है वो ओपनिंग असेट में रहेगा. इफ यू रिसीव्ड समथिंग फॉर द करंट ईयर, वो इनकम में चला गया. इफ यू रिसीव्ड समथिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर, वो क्लोजिंग लायबिलिटी में चला गया. कैपिटल रिसीट्स, सम रिसीट्स विल इंक्रीज लायबिलिटी and some receipts will decrease assets. अब ध्यान देना. पेमेंट, if you made payment for previous year, अगर आपने previous year का कुछ पेमेंट किया है, वो क्लोजिंग लायबिलिटी में रहेगा. वो कहां पे रहेगा? क्लोजिंग लायबिलिटी में. if you made payment for the current year, अगर आपने कुछ करंट ईयर के लिए पेमेंट किया है, वो एक्सपेंडिचर में रहेगा. इसमें रहेगा एक्सपेंडिचर में. And if you have made payment for the next year, anything paid for next year is a prepaid, वो prepaid रहेगा क्लोजिंग असेट में. That's it. So देखो पेमेंट साइड कहां पे गया. पेमेंट साइड प्रीवियस ईयर का पेमेंट ओपनिंग लायबिलिटी में उतना मिनिमम रहेगा पेएबल बोल के. करंट ईयर का पेमेंट एक्सपेंडिचर में गया. नेक्स्ट ईयर का पेमेंट क्लोजिंग असेट में गया. कैपिटल एक्सपेंडिचर्स जो असेट इंक्रीज करते हो असेट में ऐड होंगे, और जो लायबिलिटीज डिक्रीज करते हो लायबिलिटी से माइनस होंगे. दिस इज योर लिंकिंग. समझने के लिए मैं थोड़ा रिवाइज कर रहा हूं डिटेल में, तो आपको क्लिक हो कौन सा आइटम कहां पे जाता है. लिखो. जो लिख रहे हैं जल्दी करो.
ये बहुत बेसिक चीज है। सेकंड इफेक्ट देना आना चाहिए। एक इफेक्ट रिसेंट पेमेंट में, दूसरा इफेक्ट कहां पे हो ढूंढना है। प्रीवियस ईयर मतलब ओपनिंग, नेक्स्ट ईयर मतलब क्लोजिंग, करंट ईयर मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, मतलब वो कहां पे रहेगा दूसरा इफेक्ट उसका, वो ढूंढना है आपको। मैं पूरा रिवाइज कर लूंगा आज, ध्यान देना एक एक चीज। Now, the second thing is income and expenditure, जो हमें करना होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, it is same as your profit and loss account. Debits are expenditure, credits are income. ध्यान देना, it is same as your profit and loss account. Debits are expenditure to expenditure of the current year. How to find out expenditure of the current year? Revenue payment, revenue payment during the year, during the current year. इस ईयर में कितना पेमेंट हुआ, सैलरी का कितना पेमेंट हुआ, रेंट का कितना पेमेंट हुआ, लाइक दैट। दो चीजें माइनस की जाती है। अगर हमें करंट ईयर का ढूंढना है तो हमें दो चीजें माइनस करनी, माइनस पेड फॉर प्रीवियस ईयर। अगर इस साल में हमने जो पेमेंट किया, ध्यान देना, इस साल में हमने इतना पेमेंट किया है, इस साल में हमने इतना पेमेंट किया है, इसमें से पेड फॉर प्रीवियस ईयर माइनस किया जाएगा, बिकॉज वो ओपनिंग लायबिलिटी का आइटम होता है। पेड फॉर नेक्स्ट ईयर माइनस किया जाएगा, बिकॉज वो क्लोजिंग असेट का आइटम होता है, और करंट ईयर ही एक्सपेंडिचर का आइटम होता है, करंट ईयर ही एक्सपेंडिचर का आइटम होता है। देयरफॉर मैं क्या बोलूंगा, रेवेन्यू पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर, रेवेन्यू पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर। ध्यान देना, व्हाट इज रेवेन्यू पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर? आपने कितना पेमेंट किया है एक्सपेंडिचर का टोटल, आपने करंट ईयर का, प्रीवियस ईयर का प्लस नेक्स्ट ईयर के, ऐसे 3 पेमेंट्स किए हो सकते हैं। आपने 3 साल की सैलरी साल भर में पेड की होती है। प्रीवियस ईयर की अगर पेएबल होगी तो वो करंट ईयर की, और कभी कभी हम प्रीपेड सैलरी भी पे करते हैं। हमने जो रेंट पेड किया होगा शायद से वो 3 साल का पेमेंट हो सकता है। मे बी लास्ट ईयर का जो पेएबल था वो इस ईयर का प्लस नेक्स्ट ईयर का कुछ पेएबल रहेगा वो। सो डज इट मीन कि हमने 3 साल का एक ही साल में पेमेंट किया, मतलब पूरा का पूरा एक्सपेंडिचर है? नो। देखो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राइट, आपने रेवेन्यू पेमेंट्स 3 साल का किया है, उसमें से एक्सपेंडिचर में कौन सा आने वाला है, करंट ईयर, वही मुझे करंट ईयर का रखना है। सो रेवेन्यू पेमेंट्स ड्यूरिंग द करंट ईयर, जितना पेमेंट है उसमें से माइनस करूंगा पेड फॉर प्रीवियस ईयर, दूसरा माइनस करूंगा पेड फॉर नेक्स्ट ईयर। सो मुझे मिलेगा इस साल में इस साल का कितना पेमेंट किया, इस साल में इस साल के लिए कितना पेमेंट किया, एंड देन आई विल ऐड 2 थिंग्स, 2 चीजें माइनस, जो पेमेंट हुआ है उसमें से प्रीवियस ईयर का माइनस करूंगा और नेक्स्ट ईयर का माइनस करूंगा, और आई विल ऐड 2 थिंग्स। विच आर दोस 2 थिंग्स? फर्स्ट, ऐड 2 थिंग्स। फर्स्ट, राइट, already paid in the previous year, already paid in previous year, that is prepaid at the beginning. अगर ओपनिंग असेट में प्रीपेड है, अगर ओपनिंग असेट में प्रीपेड है
मतलब इस साल का पहली पेड हुआ था, इस साल का पहली पेड हुआ था, उस प्रीवियस ईयर में हमने बोला था भाई तू इस ईयर का नहीं तू नेक्स्ट ईयर का है। प्रीवियस लास्ट ईयर में हमने बोला था तू इस ईयर का नहीं तो नेक्स्ट ईयर का है। जब वो नेक्स्ट ईयर आएगा तब उसको एक्सपेंडिचर में लेना होगा, प्रीपेड एट द बिगिनिंग। एंड दूसरा आइटम ऐड होगा, राइट, अभी भी पे करना बाकी है, आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। एंड दैट इज योर एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर। So how to find out expenditure for current year? How to find out expenditure for current year? Paid during the year, expenditure paid during the year minus उसमें से प्रीवियस ईयर का कितना है, माइनस उसमें से नेक्स्ट ईयर का कितना है, तो करंट ईयर का रखो, प्लस ऑलरेडी पेड इन द प्रीवियस ईयर। अगर ओपनिंग के प्रीपेड में कुछ होता है, ओपनिंग के प्रीपेड में कुछ है, वो इस साल में लास्ट ईयर में एसेट थी, इस ईयर में वो एक्सपेंडिचर होगा। ओपनिंग अगर प्रीपेड है, एसेट साइड पे दिख रहा है ओपनिंग के प्रीपेड एक्सपेंसेस, वो लास्ट ईयर में एसेट थी, इस ईयर में वो एक्सपेंस, उसको एक्सपेंस में लेके आएंगे। प्लस ऐसे भी कुछ हो सकता है जो हमने इस साल का नेक्स्ट ईयर में पे करने वाले होंगे, इस ईयर के एंड में वो आउटस्टैंडिंग वो ऐड करेंगे। ठीक है, देन वी टेक इनकम्स ऑफ द करंट ईयर। पेड पे रहते इनकम्स ऑफ करंट ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, ट्यूशन फीस रिसीव्ड, एनुअल मेंबरशिप फीस रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड वगैरह वगैरह। हाउ टू फाइंड आउट इनकम फॉर द करंट ईयर? रेवेन्यू रिसीव्स ड्यूरिंग द करंट ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। इस ईयर में हमें कितना मिला, इस ईयर में हमें रिसीट साइड पे कितना मिला है, इतना। इस ईयर में कितना मिला है, थोड़ा प्रीवियस ईयर का, थोड़ा नेक्स्ट ईयर का, बाकी करंट ईयर का। बट उसमें से जो प्रीवियस ईयर का मिला है वो ओपनिंग में रिसीवेबल था, वो ओपनिंग बैलेंस शीट का आइटम है। जो नेक्स्ट ईयर का इस साल में मिला है वो क्लोजिंग लायबिलिटी का आइटम है। देखो जो करंट ईयर का मिला है वही इनकम का आइटम है। सो इनकम रखना है तो हमें जो मिला है पूरा इस साल में उसमें से दो चीजें माइनस करनी है, रिसीव्ड फॉर प्रीवियस ईयर, रिसीव्ड फॉर नेक्स्ट ईयर। सिमिलर इनकम एंड एक्सपेंडिचर सेम तरीके से ढूंढा जाता है, कुछ अलग नहीं। माइनस रिसीव्ड फॉर प्रीवियस ईयर, ये लास्ट ईयर की इनकम थी बट उस ईयर में आउटस्टैंडिंग थी। सो उस ईयर में आपने इनकम में ऐड करके असेट में ऐड किया था। उस ईयर में लास्ट ईयर में आपने इनकम में आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर बोल के आपने उसको इनकम में ऐड करके असेट में ऐड किया था। अब वो असेट रिकवर हुई है, दिस इज नॉट इनकम। फिर इस ईयर की इनकम ऐड मत करना है तो डबल इनकम हो जाएगी, गलत दिखेगा। माइनस रिसीव्ड फॉर नेक्स्ट ईयर, रिसीव्ड फॉर नेक्स्ट ईयर, ये नेक्स्ट ईयर की इनकम है, ये प्री रिसीव्ड है, ये इस ईयर की इनकम में नहीं ऐड होगा, ये नेक्स्ट ईयर की इनकम में ऐड होगा। तो हम इसको नेक्स्ट ईयर के लिए ट्रांसफर कर देंगे, वी विल ट्रांसफर इट टू लायबिलिटी। सो ये आज लायबिलिटी में जाएगा, कल इनकम में जाएगा। ध्यान देना ये जो आइटम है ना वो लास्ट ईयर इनकम में था, वो लास्ट ईयर इनकम में था, और ये आइटम नेक्स्ट ईयर इनकम में जाएगा। सो एक बार आपने रिसीव्ड फॉर प्रीवियस ईयर माइनस किया, रिसीव्ड फॉर नेक्स्ट ईयर माइनस किया, तो आपके पास क्या बचेगा, रिसीव्ड फॉर करंट ईयर जो आपके इनकम साइड पे आएगा, प्लस दो चीजें माइनस, दो चीजें प्लस। ऐसे भी हो सकता है कि इस ईयर की इनकम पहले ही मिली होगी, प्री रिसीव्ड एट द बिगिनिंग, जैसे इस ईयर में नेक्स्ट ईयर की इनकम मिली, इस ईयर में नेक्स्ट ईयर की इनकम मिली, वैसे इस ईयर की इनकम पहले कभी मिल सकती है, यस। तो received in advance at the beginning, already received in the previous year, already received in the previous year, ठीक है, already received in the previous year, that is pre received at the beginning,
ये ओपनिंग लाइबिलिटी में होता है, रिसीव्ड एडवांस बोल के। सो लास्ट ईयर में आपने बोला था तो नेक्स्ट ईयर का है, तो जब नेक्स्ट ईयर आ गया तो उसको इनकम में खींचना होगा प्लस। ऐसे भी हो सकता है जो अभी तक मिला नहीं, आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। दैट इज योर इनकम फॉर द ईयर। सो इनकम फॉर द ईयर माइनस एक्सपेंस फॉर द ईयर आपको मिल जाता है, आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा सरप्लस, टू सरप्लस फॉर द ईयर। So when income is more than expenditure, excess of income or expenditure is surplus, credit balance. Or when expenses are in excess of income, deficit, to surplus for the current year. जो हम कैपिटल फंड में ऐड करते हैं, और बाय डेफिसिट फॉर द करंट ईयर, जो हम कैपिटल फंड से माइनस करते हैं। सो हाउ टू फाइंड आउट इनकम एंड एक्सपेंडिचर, दोनों का तरीका सेम है। जो साल भर में रिसीव्ड है या पेड है, इनकम है तो रिसीव्ड, एक्सपेंडिचर तो पेड। जो साल भर में है उसमें से माइनस करो प्रीवियस ईयर का कितना है, माइनस करो नेक्स्ट ईयर का कितना है, तो करंट ईयर का रखो, प्लस प्रीवियस ईयर में पेड या प्रीवियस ईयर में रिसीव्ड था इस ईयर का, वो ऐड करो, एंड प्लस आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर ऐड करो, यू विल गेट द आंसर। लिखो, जल्दी करो। दिस योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर। मैं सब चीजें समराइज करके समझाने का ट्राई कर रहा हूं। मेक इट फास्ट। ठीक से लिखो।
ठीक है, लिख लिया। आगे यहां तक क्लियर है? ओके, आगे ध्यान देना, यहां तक सब कुछ क्लियर है? ठीक है, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। या ध्यान देना, सिक्सटी थ्री, पेज नंबर 63, मतलब ऑलमोस्ट मुझे 75 पे जाना होगा। हाँ, ध्यान देना। लाइक दिस एग्जाम्पल, ध्यान देना खाली। ठीक है, एवरीवन, they have given you receive payment account. These are opening balances. These are opening balance to balance brought down, cash in hand, cash at bank. These are opening assets. ये opening balance sheet asset में रहेंगे, ये opening balance sheet asset में रहेंगे। Subscription received, ये previous year का subscription है, ये भी opening asset में रहेगा। ये कहाँ पे रहेगा? opening asset में। इफ यू प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग असेट में रहेगा। ये करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है, ये इनकम है, 1 लाख की इनकम है। ये नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन है, इस ईयर में नेक्स्ट ईयर का मिला है। ये क्लोजिंग लायबिलिटी है, ये क्लोजिंग लायबिलिटी है। डोनेशंस, दे हैव सेड जनरल, जनरल डोनेशंस इज इनकम। Entrance fees received, if nothing is mentioned income, if they say capitalize, then capital fund liability में ऐड होगा। अगर बोलते हैं पार्शियली इनकम है, पार्शियल कैपिटलाइज करना है, तो एग्जांपल 15,000 में से सपोज 10,000 कैपिटलाइज करना है एंड 5,000 इनकम रहेगी। फिर डिपेंड्स, यू हैव टू रीड द क्वेश्चन। 60% ऑफ द एंट्रेंस फीस टू बी कैपिटलाइज, मतलब 60% इनकम, 60% कैपिटल है, लायबिलिटी है, एंड 40% इनकम है। इंटरेस्ट ऑन एफडी ऑब्वियसली इनकम। पिकनिक रिसीट्स इज इनकम। ठीक है, रेंट, रेंट फॉर प्रीवियस ईयर, 18-19 प्रीवियस ईयर है, रेंट फॉर प्रीवियस ईयर इज क्लोजिंग लायबिलिटी। सॉरी, प्रीवियस ईयर मतलब ओपनिंग, ये ओपनिंग लायबिलिटी में रहेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये 70,000 ओपनिंग लायबिलिटी में रहेगा, 700 ओपनिंग लायबिलिटी में रहेगा, एंड दिस 54,300 रेंट पेड फॉर करंट ईयर, ये एक्सपेंडिचर में होगा, ये एक्सपेंस होगा। यू हैव पेड फॉर फिक्स असेट, आपने फिक्स डिपॉजिट्स परचेस किए, ये इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट में ऐड होगा। सन्ड्री एक्सपेंसेस का पेमेंट किया, ये एक्सपेंसेस है। इंश्योरेंस का पेमेंट किया, एक्सपेंस। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का पेमेंट किया, एक्सपेंस। पिकनिक एक्सपेंसेस का पेमेंट है, एक्सपेंस। सैलरीज का पेमेंट है, एक्सपेंस। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंस। एडवर्टाइजमेंट ऑफ प्रीवियस ईयर, 18-19 इज द प्रीवियस ईयर, सो हमने 7,000 प्रीवियस ईयर का पेमेंट किया, ये ओपनिंग लायबिलिटी में रहेगा, ये ओपनिंग लायबिलिटी में रहेगा। नहीं मतलब ओपनिंग में 7,000 पेएबल था, हमने 7,000 पेड किया, तो क्लोजिंग लायबिलिटी में कुछ नहीं बचेगा।
ओपनिंग में 7,000 पेबल था, साल भर में 7,000 पेड होने के बाद क्लोजिंग में कुछ बचेगा क्या? नहीं। एंड दीज आर क्लोजिंग बैलेंसेस, ये क्लोजिंग असेट्स है, ये क्लोजिंग असेट्स है। देन आगे like this, you should understand, you must be in position to read the receipt payment account, डाल देना like this is opening asset, ये ओपनिंग बैलेंस शीट असेट साइड पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इनकम में जाएगा, बट पूरा का पूरा 5,000 नहीं जाएगा। अगर इस 5,000 में कुछ प्रीवियस ईयर का है वो इनकम में नहीं आएगा, वो ओपनिंग असेट में दिख रहा होगा। नेक्स्ट ईयर का अगर रहेगा वो क्लोजिंग लायबिलिटी में जाएगा, करंट ईयर का इनकम में रहेगा। डोनेशंस रेवेन्यू इनकम। एंट्रेंस फीस, कुछ लिखा क्या एंट्रेंस फीस के बारे में? नहीं। सो नथिंग इज मेंशन, इट इज इनकम। इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम। सैलरीज पेड एक्सपेंस। क्या पूरे के पूरे 4,000 के सैलरी एक्सपेंस में जाएंगे? उसमें से करंट ईयर के एक्सपेंस में जाएंगे। अगर कुछ प्रीवियस ईयर का होगा वो ओपनिंग लायबिलिटी में दिख रहा होगा, और जो नेक्स्ट ईयर का होगा वो क्लोजिंग असेट में दिख रहा होगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस। कमीशन पेड एक्सपेंस। रेंट पेड एक्सपेंस। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेड एक्सपेंस। फर्नीचर परचेस किया है, पेमेंट फॉर फर्नीचर असेट, असेट में ऐड होगा। एंड दिस इज क्लोजिंग असेट, ये दोनों क्लोजिंग असेट में ऐड होंगे। देन ऐसे आपको समझना है, आपको पढ़ना आना चाहिए। व्हाट दे हैव गिवन, पढ़ना आना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। वंस यू स्टार्ट रीडिंग रिसीविंग पेमेंट, आपके लिए क्वेश्चन बहुत इजी होगा। कैश इंट्रोड्यूस, ये कैपिटल होगा ना, ये कैपिटल फंड। दिस इज न्यूली स्टार्टेड रहेगा, स्टार्टेड प्रैक्टिस इन द करंट ईयर। मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट है ही नहीं, ओपनिंग बैलेंस शीट है ही नहीं, जो कुछ भी है करंट ईयर का, बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। कैपिटल फंड में जाएगा ये। विजिट फीस, इट इज इनकम। रिसीट्स फ्रॉम डिस्पेंसरी, डॉक्टर है, इनकम। सेंड रिसीट्स इनकम। फर्नीचर के लिए पेमेंट असेट, इक्विपमेंट के लिए पेमेंट असेट, ड्रग्स के लिए पेमेंट एक्सपेंस, सैलरीज के लिए पेमेंट एक्सपेंस, रेंट के लिए पेमेंट एक्सपेंस, कन्वेंस के लिए पेमेंट एक्सपेंस, स्टेशनरी के लिए पेमेंट एक्सपेंस, इलेक्ट्रिकल चार्जेस का पेमेंट एक्सपेंस, जर्नल्स के लिए पेमेंट एक्सपेंस, ड्राइंग्स कैपिटल से माइनस होगा, ड्राइंग्स कैपिटल से माइनस होगा, कैपिटल फंड। And this is closing asset, as simple as that. Then now this is, ध्यान देना, ओपनिंग असेट है ये, ओपनिंग असेट। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर प्रीवियस ईयर, ये प्रीवियस ईयर का, ये ओपनिंग असेट में रहेगा, रिसीवेबल बोल के अपोजिट साइड पे रहेगा ओपनिंग बैलेंस शीट के। नहीं, ये करंट ईयर, ये नेक्स्ट ईयर का है। सॉरी, लेट मी चेक। 18-19 इज द करंट ईयर, 18-19। तो ये प्रीवियस ईयर का, ये भी प्रीवियस ईयर का। सो बोथ विल अपीयर ऑन ओपनिंग बैलेंस शीट। सपोज ओपनिंग बैलेंस शीट में टोटल मिनिमम कितना होगा? 5,000, मिनिमम 5,000 होगा। अगर इस ईयर में, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इन दिस करंट ईयर आई हैव रिसीव्ड 5,000 फॉर द प्रीवियस ईयर, मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट में मिनिमम कितना होना चाहिए? 5,000। 5,000 रहेगा, और इस साल में 5,000 मिल गया, 5,000 रिसीवेबल था, इस ईयर में 5,000 रिसीव्ड हो गया, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में कुछ बचेगा क्या? 0। सपोज ओपनिंग बैलेंस शीट में 7,000 था, उसमें से 5,000 मिल गया, तो क्लोजिंग में कितना बचेगा? ओपनिंग में 7,000 था रिसीवेबल, साल भर में 5,000 मिलने के बाद क्लोजिंग में कितना बचेगा? उसमें से 2,000। ठीक है, वैसे ये करंट ईयर का है, ये इनका। डोनेशन, कुछ डोनेशन के बारे में लिखा है क्या? 50% डोनेशन इज फॉर बिल्डिंग, मतलब 50% लाइबिलिटी में ऐड होगा, एंड 50%
इनकम में ऐड होगा। इंट्रेंस फीस 70% इंट्रेंस फीस टू बी कैपिटलाइज, मतलब 70% इनकम 70% कैपिटलाइज करनी है, लाइबिलिटी में ऐड होगा, कैपिटल फंड में ऐड होगा, 30% इनकम में ऐड होगा। लाइफ मेंबरशिप फीस, जनरली लाइफ मेंबरशिप फीस इज कैपिटल इन द नेचर, वो कैपिटल फंड में ऐड होना चाहिए, बट यहाँ पे लिखा है वो रेवेन्यू है। अगर इतना क्लियरली रेवेन्यू लिखा है तो इनकम में ऐड होगा, बट अगर रेवेन्यू नहीं लिखा होता तो मैं कैपिटल फंड में ऐड करता, टूर्नामेंट रिसीट्स इनकम। ये ओवरड्राफ्ट रिपेड, यही मैं बोल रहा था, दिस इज रीपेमेंट ऑफ द ओपनिंग लायबिलिटी, दिस इज रीपेमेंट ऑफ द ओपनिंग लायबिलिटी। ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग लायबिलिटी है, आपको ओवरड्राफ्ट दिख रहा होगा लायबिलिटी में। सो ओपनिंग में 30,000 का ओवरड्राफ्ट था, साल भर में पेड किया, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में ओवरड्राफ्ट बचेगा क्या? नहीं। सैलरीज एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एक्सपेंस, म्युनिसिपल टैक्सेस एक्सपेंस, परचेस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल एक्सपेंस। Then general expenses are expense, billiard expense, repairs is expense, tournament expense and सब पेमेंट होने के बाद क्लोजिंग असेट्स, सब पेमेंट होने के बाद क्लोजिंग असेट्स। नहीं, आगे अब यहां पे ध्यान देना, इसमें हमें रिसीव पेमेंट और ओपनिंग बैलेंस शीट दी है, ध्यान देना। दे आर गिवन यू रिसीव पेमेंट एंड ओपनिंग बैलेंस शीट। देखो इस क्वेश्चन में मैं आपका टेक्स्ट बुक के ही दिखा रहा हूं, मतलब आपके सामने टेक्स्ट बुक भी रहेगा, ध्यान देना। ये एक और चीज लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, मैं आपको सिखाते टाइम लिख के दिया था। देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन होता है फर्स्ट ईयर ऑफ एनपीओ, जो आप कर रहे हो वो फर्स्ट ईयर ही है, सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ ओपनिंग बैलेंस शीट। सेकंड टाइप के क्वेश्चंस होते हैं नॉट द फर्स्ट ईयर ऑफ एनपीओ, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ईयर of NPO, and second type of question is not the first year of NPO. Not the first year of NPO. फर्स्ट ईयर ऑफ एनपीओ रहेगा, सो नो ओपनिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट का कोई सवाल ही नहीं होगा। सो एकदम प्लेन क्वेश्चन हो गया, रिसेंट पेमेंट दिया होगा, एडजस्टमेंट दिए होंगे, एंड वी हैव टू प्रिपेयर, राइट, वी हैव टू प्रिपेयर, राइट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। दैट्स इट, एकदम प्लेन क्वेश्चन हो गया। नॉट द फर्स्ट ईयर ऑफ एनपीओ, इसमें वो क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन देते टाइम ओपनिंग बैलेंस शीट is given in the question, and second, is not given in the question. Is not given in the question. फर्स्ट होता है ओपनिंग बैलेंस शीट इज गिवन इन द क्वेश्चन,
एंड द सेकंड ओपनिंग बैलेंस शीट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। जब उन्होंने हमें ओपनिंग बैलेंस शीट क्वेश्चन में दी होती है, मतलब क्वेश्चन में क्या क्या दिया होगा, ओपनिंग बैलेंस शीट, रिसीव पेमेंट एंड एडजस्टमेंट। उन्होंने हमें ओपनिंग बैलेंस शीट टैलेड दी होगी, रिसीव पेमेंट टैलेड दिया होगा एंड एडजस्टमेंट। सो ओपनिंग बैलेंस शीट इज गिवन इन द क्वेश्चन, देन वी हैव टू प्रिपेयर income and expenditure account and closing balance sheet. If they are not given us opening balance sheet, उन्होंने हमें ओपनिंग बैलेंस शीट जानबूझ के दी नहीं है, विदाउट ओपनिंग बैलेंस शीट तो होनी चाहिए। क्यों? बिकॉज दिस इज नॉट द फर्स्ट ईयर। अगर हमें स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता तो हम क्लोजिंग पॉइंट कैसे ढूंढेंगे? इसलिए हमें ओपनिंग बैलेंस शीट करनी होगी। तो यहाँ पे हमें 3 चीजें करनी होगी, प्रिपेयर opening balance sheet, then with the help of opening balance sheet in the working note and income, recent payment and adjustment in the question, we will prepare income and expenditure account and closing balance sheet. And closing balance sheet. ठीक है, ध्यान देना। अगर यहां तक क्लियर है तो एक मैं सेंटेंस बोलता था। जब हमें ओपनिंग बैलेंस शीट हमने बनाई है, क्वेश्चन में दिए, हमने वर्किंग नोट में किया है, व्हाट इज दैट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, लिख लेना। क्या वो स्टेटमेंट था? एवरी आइटम ऑफ ओपनिंग बैलेंस शीट जो टैलीड होता है एक जगह पे आएगा, will have one unique effect and because of tallied information and will become inner column of closing balance sheet। जो भी ओपनिंग बैलेंस शीट का आइटम है प्लांट, वो क्लोजिंग बैलेंस शीट के इनर कॉलम में आएगा। प्लांट एग्जांपल मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, समझ में आ रहा है? बैंक लोन, कैपिटल फंड। ओपनिंग बैलेंस शीट becomes closing balance sheet, opening balance sheet becomes closing balance sheet inner column, opening balance sheet becomes, that is opening balance sheet becomes closing balance sheet inner column, inner column, except opening cash and bank balance। ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस, लाइक ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस, लाइक राइट, ये कहां पे आते हैं? ये आते हैं ओपनिंग, ये आता है रिसेंट पेमेंट में। ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में नहीं आते, किस में आते हैं? रिसेंट पेमेंट। उसके डेबिट पे रहेंगे, वो कैंसिल हो जाएगा। सेकंड, राइट, कैश एंड बैंक बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस शीट में से जो कैश एंड बैंक बैलेंस है वो नहीं आएगा। दूसरा, प्रीपेड एक्सपेंस। अगर ओपनिंग बैलेंस शीट में प्रीपेड एक्सपेंस ऐसे साइड पे, तो वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में नहीं जाएगा, वो एक्सपेंडिचर साइड पे। लास्ट ईयर का प्रीपेड इस ईयर में क्या बन जाएगा? एक्सपेंस। ये एक्सपेंडिचर साइड में जाएगा। आई विल एड इन एक्सपेंस, करंट ईयर एक्सपेंस। देखो यहां पे मैंने लिखा है
प्रीपेड एट द बिगिनिंग, वो एक्सपेंडिचर में ऐड होगा, प्रीपेड एट द बिगिनिंग। तीसरा ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल और ओपनिंग स्टॉक। अगर ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग स्टॉक है, वो ट्रेडिंग के डेबिट पे जाता है, वो क्लोजिंग स्टॉक बोल के क्लोजिंग बैलेंस शीट में नहीं जाता है, क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में दिया होगा। सो ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग बैलेंस शीट में है, असेट साइड पे, दैट इज टेकन टू एक्सपेंडिचर साइड टू फाइंड आउट कंजम्पशन। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो वो जो कंजम्पशन ढूंढना है ना, वहां पे जो ओपनिंग स्टॉक है यहाँ पे आएगा। दिस इज टेकन टू एक्सपेंडिचर साइड टू फाइंड आउट कंजम्पशन। 4 ओपनिंग कैश, कैश एंड बैंक बैलेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, ओपनिंग स्टॉक। एंड फोर्थ आइटम होता है राइट प्री रिसीव्ड इनकम। अगर ओपनिंग लायबिलिटी में प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन है, लास्ट ईयर में प्री रिसीव्ड था, इस ईयर का इनकम है, हम उसको इनकम में ऐड करते हैं। देखो यहाँ पे प्री रिसीव्ड एट द बिगिनिंग, हमने उसको इनकम में ऐड किया है, ये इनकम में आएगा, इनकम साइड। सो ये याद रखना हमेशा, अगर उन्होंने हमें ओपनिंग बैलेंस शीट दी है, टैलीड इंफॉर्मेशन तो एक जगह पे आएगा। ओपनिंग बैलेंस शीट बिकम्स क्लोजिंग बैलेंस शीट इनर कॉलम एक्सेप्ट ओपनिंग कैश एंड बैंक, बिकॉज ऑफ क्वेश्चन में कैंसिल हो जाता है, बिकॉज ऑफ क्वेश्चन में रिसेंट पेमेंट के साथ कैंसिल हो जाएगा। अगर ओपनिंग में प्रीपेड एक्सपेंस है, वो इस ईयर के एक्सपेंडिचर साइड में ऐड करो। अगर ओपनिंग बैलेंस शीट में स्टॉक दिया है, वो इस ईयर के एक्सपेंडिचर साइड में डाल दो टू फाइंड आउट कंजम्पशन। अगर ओपनिंग लायबिलिटी में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस है, वो लास्ट ईयर में रिसीव्ड एडवांस था, इस ईयर में इनकम है, तो लास्ट ईयर का प्रीपेड इस ईयर का एक्सपेंडिचर होता है, लास्ट ईयर का प्री रिसीव्ड इस ईयर की इनकम हो जाती है। उसके सिवा बाकी जो भी ओपनिंग बैलेंस शीट है क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगी। एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिसीव्ड पेमेंट के जो इफेक्ट्स रहेंगे वो देख के हमें क्लोजिंग बैलेंस शीट पता चलेगी। सो ये हमेशा याद रखना। तो अब यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में, ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ये क्लोजिंग लायबिलिटी में आ जाएगा। एंट्रेंस फीस शायद से ये कैपिटलाइज करना था, इस साल में हम कैपिटलाइज करेंगे, मतलब कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। नेक्स्ट, आई डोंट नो क्या लिखा है इंटरेस्ट फीस के बारे में, नहीं। देन आगे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक कैंसिल हो गया, इट विल नेवर अपीयर इन द आंसर। इसका एक इफेक्ट क्वेश्चन में खत्म हुआ है। लैबोरेटरी असेट में आएगा, बिल्डिंग असेट में आएगा, फर्नीचर असेट में आएगा, बुक्स असेट में आएगा। ट्यूशन फीस रिसीवेबल, ये रिसीवेबल था, ये जो रिसीवेबल है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो रिसीवेबल है इसमें से 8000 साल भर में रिसीव्ड है, मतलब एक क्लोजिंग बैलेंस शीट में कितना आएगा 2000। 10,000 रिसीवेबल था, उसमें से 8000 रिसीव्ड हो गया, तो अभी भी कितना रिसीवेबल है 2000। सो क्लोजिंग असेट में कितना आएगा 2000। इनर कॉलम में दिखेगा 10,000 माइनस रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, ये हम यहां से माइनस करेंगे 10,000 से, तो 2000 दिखेगा। ये कैंसिल हो गया राइट, ये कैंसिल हो गया, इट इज इनकम है, इनकम में आएगा 1 लाख की इनकम, फाइन्स कलेक्टेड इनकम, एडमिशन फीस इनकम, टर्म फीस इनकम, डोनेशन फॉर लाइब्रेरी स्पेसिफिक डोनेशन, लाइब्रेरी में आएगा डोनेशन फॉर लाइब्रेरी 1000, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट्स, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट इनकम, टू गवर्नमेंट ग्रांट्स रेवेन्यू, हमें गवर्नमेंट से ग्रांट मिली रेवेन्यू इनकम, इनकम में ऐड होगा। सैलरीज टू टीचर एक्सपेंस, सैलरीज टू ऑफिस स्टाफ एक्सपेंस, ये हमने बुक्स परचेस किए, हमारे पास ओपनिंग में बुक्स है, हमारे पास ओपनिंग में बुक्स है 22,000, वो इनर कॉलम में दिख रहे होंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट के, प्लस हमने 15,000 के परचेस किए, टोटल 37,000 के बुक्स हो गए, टोटल 37,000 के बुक्स हो गए। देखो 37,000 के बुक्स हो गए, और फिर हम डेप्रिसिएशन देंगे ओपनिंग असेट पे, हमेशा पूरे साल का डेप्रिसिएशन, एंड साल भर में जो परचेस होता है उस पे फ्रॉम द डेट ऑफ परचेस टिल द ईयर एंड जो भी रहेगा। प्रिंटिंग स्टेशनरी एक्सपेंस, एनुअल गैदरिंग एक्सपेंस, एक्सपेंस ऑफिस रेंट एक्सपेंस,
रिपेयर्स एक्सपेंस, स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस एक्सपेंस। हमने फर्नीचर साल भर में परचेस किया। मेरे पास ओपनिंग में फर्नीचर 40,000 का था, ओपनिंग में 40,000 का फर्नीचर था, हमने साल भर में 50,000 का फर्नीचर परचेस किया, टोटल फर्नीचर 90,000 का हो गया, टोटल फर्नीचर 90,000 का हो गया, ठीक है। एंड फिर जब हमें डेप्रिसिएशन देने की बारी आएगी, ओपनिंग फर्नीचर 40,000 पर मैं पूरे साल का दूंगा, एंड इसको मैं जुलाई एंड से मार्च, जुलाई बिगिनिंग से मार्च एंड 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन दूंगा। इस बुक्स पे मैं 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन देने वाला था 15,000 पे। आगे सब पेमेंट होने के बाद दीज आर क्लोजिंग असेट्स। नहीं, ऐसे एक आधा और क्वेश्चन रहेगा, देखो मैं आपको समझा रहा हूं। बिफोर वी स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन आपको क्लिक होना चाहिए, बिकॉज देयर इज टाइम गैप। हमने जब एक क्वेश्चंस किए थे, थोड़ा टाइम गैप है, तो मैं आई एम ट्राइंग टू रिवाइज द थिंग्स। कैपिटल फंड क्लोजिंग लायबिलिटी में 7,50,000, देखो क्लोजिंग लायबिलिटी में। देन सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस, ये इनकम में ऐड होगा, किसमें ऐड होगा? इनकम में। सो ये सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस ओपनिंग में अगर रिसीव एडवांस है, इस ईयर के इनकम में ऐड होगा, सो दिस विल बी एडेड इन इनकम। मेंबर सब्सक्रिप्शन में ऐड होगा 3,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यहां पे रहेंगे, देखो यहाँ पे एक्सपेंसेस पेड है, लेट मी चेक, पेमेंट फॉर द एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड। सो ये बिगिनिंग ऑफ द ईयर पेएबल था, इस साल में हमने 2,000 पेड किया प्रीवियस ईयर का, तो मिनिमम 2,000 होना चाहिए, कैंसिल हो गया। 2,000 पेएबल था, 2,000 पेड हो गया, क्लोजिंग लायबिलिटी में दिख रहा है 2,000 माइनस पेड 2,000, आउटर कॉलम में 0 आएगा। फर्नीचर क्लोजिंग एसेट में जाएगा, बुक्स क्लोजिंग एसेट में जाएगा, स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प्स ये एक्सपेंडिचर साइड पे आएगा। यहाँ पे रहेगा आपने पोस्टल स्टैम्प्स परचेस किए होंगे, परचेस ऑफ पोस्टल स्टैम्प्स, इसमें ऐड हो जाएगा 500 प्लस 1,500 2,000 दिखेगा, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और वो क्लोजिंग स्टॉक एसेट में जाएगा टू फाइंड आउट कंजम्पशन ऑफ द पोस्टल स्टैम्प्स। इन्वेस्टमेंट एसेट में जाएगा, ये यहाँ पे कैंसिल हो गया। मेंबर सब्सक्रिप्शन 1,80,000 इनकम में रहेगा। इंट्रेंस फीस 50% इंट्रेंस फीस एंड होल अमाउंट ऑफ द लाइफ मेंबरशिप फीस टू बी कैपिटलाइज्ड। इंट्रेंस फीस 50% इनकम, 50% कैपिटल, 15,000 इनकम, 15,000 कैपिटल फंड। सेल ऑफ न्यूज़पेपर इनकम, हायर ऑफ लेक्चर हॉल इनकम, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज इनकम, लाइफ मेंबरशिप फीस कैपिटल फंड में ऐड होगा। सैलरीज का पेमेंट एक्सपेंडिचर, बुक्स परचेज हमारे पास ऑलरेडी 6,50,500 के बुक्स थे, 6,50,500 के बुक्स थे। साल भर में हमने 1 लाख के बुक्स परचेज किए, हमने 1 लाख के बुक्स परचेज किए, 6,50,500 प्लस 1 लाख, टोटल हमारे पास बुक्स होंगे 7,50,500। और इस बुक पे हम अक्टूबर से मार्च एंड 6 मंथ्स का डिप्रिसिएशन देंगे, ओपनिंग बुक्स पे पूरे साल का, एंड करंट ईयर में जो परचेस किए उस पे फ्रॉम द डेट ऑफ परचेस टिल द ईयर एंड। देन इन्वेस्टमेंट इन एफडी, हमारे पास पहले ही 7,000 की इन्वेस्टमेंट है, और हमने 50,000 की इन्वेस्टमेंट परचेस की असेट में, 5,000 अलग से, सॉरी 7,000 अलग से, 50,000 अलग से। हमने फर्नीचर परचेस किया, हमारे पास पहले ही 50,000 का फर्नीचर था, जो क्लोजिंग बैलेंस शीट इनर कॉलम में दिख रहा होगा, और साल भर में हमने और 30,000 का परचेस किया, टोटल फर्नीचर 80,000 का हो गया। इस 50,000 के फर्नीचर पे मैं पूरे साल का डेप्रिसिएशन दूंगा, एंड इस फर्नीचर पे मैं जुलाई से मार्च एंड 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन दूंगा। नहीं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इज एक्सपेंडिचर, रेंट इज एन एक्सपेंडिचर, दीज आर क्लोजिंग असेट्स। आगे ठीक है, आगे सो ये समझना इंपॉर्टेंट है, कौन सा आइटम कहां पे जाता है ना, ये क्लिक हो गए ना तो हमारे लिए बहुत सारे क्वेश्चंस इजी हो जाएंगे, ठीक है। द लास्ट पॉइंट फॉर द डे लिख लेना, थर्ड, फाइंडिंग आउट
finding out consumption of the stock. How do you find out consumption of the stock? Opening stock, this is given in opening asset. ओपनिंग बैलेंस शीट असेट में रहेगा. एड परचेस ड्यूरिंग द ईयर, ये पेमेंट साइड पे रहेगा. परचेस ड्यूरिंग द ईयर, दिस इज ऑन पेमेंट साइड. राइट, लेस क्लोजिंग स्टॉक, ये एडजस्टमेंट में होगा. मतलब इसके दो इफेक्ट रहेंगे, इसके दो इफेक्ट रहेंगे. हम कंजम्पशन के लिए माइनस करेंगे और असेट में ऐड कर देंगे, क्लोजिंग असेट में ऐड कर देंगे. ठीक है, क्लोजिंग असेट में ऐड करेंगे. दिस इज योर थिंग. नहीं, ध्यान देना. देखो यहां पे ध्यान देना, यहां पे क्या दिया है. इलस्ट्रेशन 1 है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, दिस इज ओपनिंग बैलेंस शीट, दिस इज रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड दीज आर एडजस्टमेंट. ध्यान देना, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इज 800, ओपनिंग स्टॉक 800 प्लस परचेसेस ड्यूरिंग द ईयर. स्टेशनरी परचेस्ड 7,000 एंड नीचे लिखा है 1,500 इज आउटस्टैंडिंग फॉर स्टेशनरी बिल. मतलब हमने जितने का हमारी टोटल स्टेशनरी है उसमें से हमने 7,000 जितने का परचेस किया है उसमें से 7,000 पेड किया है, 1,500 पे करना बाकी है. सो दिस इज एड इन एक्सपेंस, एड इन लायबिलिटी. सो परचेस ड्यूरिंग द ईयर, कितने का परचेस किया, परचेस्ड एंड पेड 7,000, परचेस्ड एंड पेड 7,000, परचेस प्लस अनपेड 1,500. टोटल कितने का परचेस हो गया, 8,500. सब टोटल आ गया 9,300. लेस क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर. क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर which is 1,300, 8,000. So this is stationery consumed. ये एक्सपेंडिचर साइड पे रहेगा. देखो स्टेशनरी कंज्यूम एक्सपेंडिचर साइड पे रहेगा. सो ये आपने पेड है और ये पेएबल है, इसके दो इफेक्ट रहेंगे. एक्सपेंडिचर में ऐड हो गया, 7,000 में वो ऐड हो गया, एंड लायबिलिटी में दिखेगा आउटस्टैंडिंग बिल फॉर स्टेशनरी. अब ये वाला देखो सब्सक्रिप्शन, ध्यान देना. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इज 85,000. इसमें से ये प्रीवियस ईयर का है, ये करंट, ये नेक्स्ट ईयर का है और ये करंट ईयर का है. सो टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इज 85,000 माइनस रिसीव्ड फॉर प्रीवियस ईयर 1,500 माइनस रिसीव्ड फॉर नेक्स्ट ईयर 3,500. Therefore, क्लोजिंग में कितना बचेगा, मतलब इनकम में कितना रहेगा 80, रिसीव्ड फॉर करंट ईयर. दो चीजें ऐड होती है, ऑलरेडी रिसीव्ड, ओपनिंग लायबिलिटी में अगर कुछ रिसीव्ड एडवांस है वो ऐड होगा, प्लस आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर. सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर 7,000. ठीक है, 7,000 ऑलरेडी कुछ नहीं है. योर इनकम इज 87,000, सब्सक्रिप्शन इनकम इज 87,000. Outstanding subscription at the beginning of the year, current year is 1,780.
करंट ईयर इज 17-18, ये प्रीवियस ईयर की बात हो रही है 2000, ठीक है। और सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस ड्यूरिंग द लास्ट ईयर, अच्छा तो हमारा ध्यान देना क्या आएगा, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर माइनस रिसीव्ड फॉर प्रीवियस ईयर माइनस रिसीव्ड फॉर नेक्स्ट ईयर, right, received during the year plus already received in the previous year, subscription received advance in the last year 8,000, add 8,000 plus outstanding at the end of the current year 7,000, so आपकी subscription income 95,000, your subscription income is 95,000, ठीक है। ध्यान देना उन्होंने क्या लिखा है, ओपनिंग में 2000 रिसीवेबल था, उसमें से 500 रिसीव हो गया, सो क्लोजिंग में 2000 में से 1500 माइनस हो गया, 500 बचेगा प्लस इस साल का आउटस्टैंडिंग 7000, टोटल आउटस्टैंडिंग एट द एंड 7500 होगा। देखो इनकम में 95,000 आ गया, क्लोजिंग में आउटस्टैंडिंग रहेगा 7500 एंड ये जो रिसीव्ड फॉर द नेक्स्ट ईयर है 3500, वो लायबिलिटी में जाएगा, वो लायबिलिटी में जाएगा, वो लायबिलिटी में जाएगा। आगे ठीक है, क्लियर है। आगे कल हम क्या करेंगे, कल हम प्रॉपर सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, एक्सपेंसेस के एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस करेंगे, इन डिटेल करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस, ठीक है। थोड़ा मैं अलग से क्वेश्चंस ले लूंगा तो आपका पूरी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी, क्योंकि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट सब्सक्रिप्शन है। 12th में एनपीओ में सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट सब्सक्रिप्शन है, वो आपको अच्छे से डील करना आना चाहिए, ठीक है। और फिर नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करना फिर इतनी बड़ी बात नहीं रहेगी इफ यू कैन डील विद द सब्सक्रिप्शन, ठीक है। किसी के डाउट्स अभी तक, किसी के डाउट्स? ओके गुड, थैंक यू।